structural organization in animals, the chapter, it started with initial discussion with respect to human tissues, different types of tissues in human body. And we are moving ahead with discussion of different types of organisms as prescribed in the NCERT textbook, standard 11th. And the first organism that we studied was cockroach. Okay, cockroach, a very commonly occurring pest belonging to phylum Arthropoda, class Insecta. And the scientific name, what we call as your Periplaneta americana. You have written all these things, Periplaneta americana. Okay. We saw the general morphology of the cockroach. That was followed by the digestive system, followed by its circulatory system. We said that it is having open type of circulatory system. Cockroach की बात कर रहा हूं मैं. ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि उसके पास ब्लड है जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं. कलरलेस ब्लड के बारे में हमने बात किया था. वो ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट है कॉकरोच के पास, 13 चेम्बर्ड हार्ट. लेकिन उस ब्लड को फ्लो होने के लिए ब्लड वेसल्स नहीं है. सो इन एब्सेंस कैसा होता है, जैसा आपके बॉडी में ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल की वजह से क्या हो जाता है, द पाथ इज डिफाइंड. इस ट्यूब के अंदर से ही ब्लड ने जाना है, यह आपके बॉडी में डिफाइंड है. तो जिन ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर ब्लड के फ्लो के लिए ब्लड वेसल्स रहते हैं, उस प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम को क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा कहते हैं. ओके, कॉकरोच में ब्लड तो है लेकिन ब्लड वेसल्स नहीं है. द ब्लड मूव्स फ्रीली इन द कंप्लीट बॉडी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. हमने फिर उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में बात हमने किया, यूरिक एसिड के बारे में हमने बात किया. That was followed by its nervous system. And finally we talked about the reproductive system of cockroach. Cockroach के बारे में एक word हमने जो use किया था कि cockroach is a dioecious organism. Di यानी दो, ओशिया, oikos यानी home house bodies. आपको अगर मेल और फीमेल ये दो सेक्सेस ढूंढने हैं तो आपको दो अलग अलग बॉडीज देखनी पड़ेगी. मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है. हमने वो डायमॉर्फिज्म कहते हैं उसको, जब दो अलग अलग सेक्सेस की बॉडीज में डिफरेंस रहता है उसे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं. हमने देखा कि मेल कॉकरोच जो है, मेल और फीमेल दोनों के पास एनल सरसाए रहते हैं. ये ऐसा 10th सेगमेंट में हमने निकाला था. मेल और फीमेल दोनों में एनल सरसाए रहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेल में सेगमेंट नंबर 9 में एनल स्टाइल भी रहता है. तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपको कोई कॉकरोच दिखा और उसका जो टर्मिनल एंड है, एब्डोमेन के साइड का जो एंड है, वहां पे अगर सिर्फ 2 एक्सटेंशंस ऐसे दिखे तो हमने समझ लेना है कि वो फीमेल है. ये दोनों एनल सरसाए हैं और सिर्फ अगर 2 ही हमें ऐसे एक्सटेंशंस दिख रहे हैं उसके एब्डोमिनल एंड से निकलते हुए तो वो फीमेल है. लेकिन अगर हमें 4 एक्सटेंशंस दिख रहे हैं, 2 एनल सरसाए और 2 एनल स्टाइल, तो फिर वो मेल कॉकरोच है. समझे आप? ओके, हम प्रीवियस लेक्चर में वी फिनिश्ड विद द reproductive system of the cockroach and that was actually the end of the study related to cockroach. Today we have to talk about a new organism, again belonging to animal kingdom. Let's talk about earthworm today. Okay, अभी जैसे अगर हम कॉकरोच की बात करें, whenever we hear the word cockroach, it's not that we feel very happy or pleasant. Okay, ऐसा कॉकरोच का नाम सुना, कॉकरोच दिख गया, बहुत ऐसी खुशी होगी, ऐसी बात नहीं रहती. Whenever we hear about cockroach, I think we feel irritation. Correct है? Okay, we feel irritation. Because cockroach represents unhygienic conditions. Cockroach represents
dirt in the surrounding. Maybe cockroach represents unclean place. Cockroach represents chaos. Cockroach represents untidiness. But now that we have moved ahead of cockroach, when we hear the name of earthworm, what's the first thing that comes in my mind? At least if I talk about myself, when I think of earthworm, I immediately think about agricultural land. I immediately think about the crops growing in it. I immediately think about farmers. Because we always associate earthworms, number one, with rainfall, and number two, with farmers. हमें as we discuss earthworm in next 2-3 lectures, हमें देखना है कि why earthworm is considered to be as the friend of farmers. That is what it is commonly called as. Earthworm, if we naturally it belongs to kingdom Animalia and phylum Annelida. ये Annelida नाम का फाइलम जो है उसकी खासियत ऐसी है कि द बॉडी shows ring like segments. Annulus, Annelida ये वर्ड कहां से आता है? Annelida ये वर्ड आता है annulus से, and annulus means ring like. तो अर्थवर्म का बॉडी अगर आप देखते हैं, हमें ड्रॉ भी करना है, हमें इमेजेस भी देखनी है उसकी, अर्थवर्म का हम जब बॉडी देखते हैं तो वो रिंग लाइक सेगमेंट्स हम देखते हैं. देखिए कोई इंसिडेंस ऐसा है कि नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थवर्म, हमारे क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा बारिश शुरू हो गया है. आपने देखना चाहिए अगर आपको कहीं अर्थवर्म्स दिखते हैं क्या. एंड सम पीपल दे डोंट लाइक अर्थवर्म्स बिकॉज ऑफ दैट सॉफ्ट बॉडी एंड एवरीथिंग, बट यू शुडंट बी अफ्रेड. Okay, you should actually try to pick an earthworm and check upon its body. आपने उसके फीचर्स, बॉडी फीचर्स देखने चाहिए, स्टडी करने चाहिए. देखिए आप अभी साइंस के स्टूडेंट्स हैं. क्यूरियोसिटी एंड द एबिलिटी टू लर्न एंड एब्जॉर्ब द थिंग्स इन द सराउंडिंग, ये आपका जनरल एटीट्यूड होना चाहिए अभी. तो earthworm comes under phylum Annelida for the reason that it is showing ring-like segments. Annulus, Annelida यानी annulus, annulus यानी ring-like segments. And it also comes under class what is called as Clitellata. क्लास को क्या कहते हैं? Clitellata. इसके पीछे रीजन ऐसा है because it contains क्लाइटेलम. अभी ये क्या चीज है ये मैं आपको बाद में बताता हूं, सिर्फ ये नाम ध्यान में रखिए, क्लाइटेलम, क्लाइटेलम. समझ गए आप? ओके, मूविंग अहेड. The genus that we will be studying, that genus is Ferretima, and the species that we will be studying, that species is Posthuma. Okay, आपको मैं बार बार याद दिला रहा हूं कि ये क्या है, ये साइंटिफिक नेम है. जीनस नेम और स्पीशीज नेम ये साइंटिफिक नेम्स रहते हैं. ओके, जनरली साइंटिफिक नेम हम ऐसे भी लिख सकते हैं. देखिए फेरेटिमा पोस्थ्यूमा, पहला है जेनेरिक नेम, दूसरा है स्पीशीज नेम. हमने पहले चैप्टर में देखा था. ये जेनेरिक नेम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहता है, बाकी का सब स्मॉल है. स्पीशीज नेम में एवरीथिंग इज स्मॉल.
If it is printed in italics, but since here it is handwritten, we are showing single underline and separate underline, single underline and separate underline. तो ये एक स्पीशीज है, किस चीज का? अर्थवर्म का। ये एक स्पीशीज है। ऑफ कोर्स लुम्ब्रिकस नाम का और एक स्पीशीज है। अर्थवर्म के ऑलमोस्ट 13 अलग अलग स्पीशीज पाई जाती है। ओके, एटलीस्ट मैं इंडिया के क्षेत्र की बात कर रहा हूं। ओके, विद इन इंडिया देर आर ऑलमोस्ट 13 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ अर्थवर्म दैट आर फाउंड through the India, and the species that we will be studying in detail is Ferretima posthuma. अर्थवर्म का ये क्लासिफिकेशन ध्यान में रखिए। आई होप यू आर राइटिंग इट इन योर नोटबुक्स। एक कंटिन्यूअस नोटबुक मेंटेन कीजिए प्लीज। ओके, एक बार आपका और मेरा क्लास में फेस टू फेस इंटरेक्शन शुरू हो गया, तब आपको ये सब रनिंग नोट्स बहुत ही फायदेमंद रहने वाले। ओके, दीज आर द थिंग्स दैट आर नॉट गिवन इन एनी टेक्स्ट बुक। ये आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, लेकिन सवालों में और जवाबों में ये चीजें आती हैं। दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव इट विथ यू। समझ रहे हैं आप? ओके, एनीवे, दिस इज द जनरल, just the general introduction of earthworm. अभी earthworm का बॉडी अगर आप देखेंगे, the body of earthworm, as we know, it is segmented. It contains somewhere around 100 to 120 segments. ये हम adult earthworm की बात कर रहे हैं. Okay, not a newly born earthworm. We are talking about an adult earthworm. Adult earthworm का body जो है उसमें लगभग 100 to 120 segments है. तो हम अगर उसका body देखें, it might not be a very accurate representation, but let's try to. ये डॉर्सल व्यू है। डॉर्सल व्यू यानी अर्थवर्म अगर आपके सामने से जा रहा है तो इफ इट इज मूविंग, उसका जो साइड हमको दिखता है उसे डॉर्सल साइड कहते हैं। तो ये डॉर्सल व्यू है। डॉर्सल व्यू में पहली बात तो लगभग 100 to 120 सेगमेंट्स है। पहली बात ये है, जैसा अभी सपोज दिस इज सेगमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 20 21 22, ऐसा करते 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 समवेयर अराउंड 100 to 120 सेगमेंट्स है। अभी मैं जब गिन रहा था, आई होप आपके ध्यान में आया होगा कि यहां सेगमेंट नंबर 14 to 16, यहां सेगमेंटेशन नहीं है। ओके, एडल्ट वर्म अगर है तो एडल्ट वर्म का 14 to 16 सेगमेंट वाला पार्ट जो है वो प्लेन रहेगा। बाकी उससे पहले और उसके बाद आपको कंटिन्यूअस सेगमेंटेशन दिखाई देगा। उसकी चिंता मत कीजिए, बाद में कंटिन्यूअस है, कहीं भी गैप नहीं है, लेकिन ये 14 to 16 गैप है। उससे भी पहले लेट मी फर्स्ट टेल यू समथिंग एल्स। 100 से 120 सेगमेंट्स जो है, इस अरेंजमेंट को कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। प्लीज कीप दिस वर्ड इन माइंड। ये 4 मार्क्स है आपके। व्हाट इट इज कॉल्ड?
मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन यानी क्या? ये सेगमेंटेशन सिर्फ ऊपर से ही दिखता है ऐसा नहीं है, ये अंदर से भी, इट गोज इनसाइड। ओके, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन कॉकरोच में भी था। आपको अगर याद होगा, कॉकरोच का एब्डोमेन हमने देखा था, 10 सेगमेंट्स हमने दिखाई थी। कॉकरोच में भी, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा और अर्थवर्म में भी सेगमेंटेशन दोनों के पास है। और इन दोनों में सेगमेंटेशन को किस प्रकार का सेगमेंटेशन कहते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। यह सवाल बहुत बार पूछा गया है। सवाल कैसा है? विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स शो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ओके, इस प्रकार का मेटामेरिक सेगमेंटेशन कौन दिखाता है? फिर एक ऑप्शन आ गया एनेलिडा, दूसरा ऑप्शन आ गया आर्थ्रोपोडा, तीसरा ऑप्शन आ गया बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन आ गया नन ऑफ दीज। जनरली बच्चों का प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन अगर पूछा तो बच्चे इमीडिएटली आर्थ्रोपोडा को टिक कर देते हैं। ओके, क्योंकि आर्थ्रोपोडा का यानी कॉकरोच का सेगमेंटेशन हमें ध्यान में रहता है, हम एनेलिडा का यानी अर्थवर्म का सेगमेंटेशन बहुत बार भूल जाते हैं। लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है, और मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये कॉकरोच यानी आर्थ्रोपोडा में भी है और अर्थवर्म यानी एनेलिडा में भी है। हम यहां लिख के रखेंगे, इट बिलोंग्स टू द ग्रुप, टू द फाइलम एनेलिडा। ओके, मूविंग अहेड, ये एक बात हो गई, इट शोज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अगली बात ऐसी है, आपको अगर याद होगा हमने अर्थवर्म का क्लास कौन सा बताया? वी सेड दैट इट बिलोंग्स टू क्लास क्लाइटेलेटा। क्यों? बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्लाइटेलम बिटवीन सेगमेंट 14 एंड 16। ये इतना रीजन जो है, इस रीजन को कहते हैं, लेट मी, इस रीजन को कहते हैं क्लाइटेलम। क्या कहते हैं? क्लाइटेलम। आपने अर्थवर्म हाथ में लेकर देखना चाहिए एक्चुअली, उसके हेड पार्ट के। बहुत बार बच्चे मुझे ये भी सवाल पूछते, सर अर्थवर्म तो हमने देखा है लेकिन वो समझ में नहीं आता उसका हेड पार्ट कौन सा है और टेल पार्ट कौन सा है। सही है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो रिवर्स गियर डाल के पीछे की तरफ भी मूवमेंट शो कर सकता है, आगे की तरफ भी मूवमेंट शो कर सकता है। तो फिर समझेंगे कैसे कि इसमें का अगला एंड कौन सा है, एंटीरियर पार्ट कौन सा और पोस्टीरियर। क्लाइटेलम इज द इजीएस्ट वे। ओके, आप अगर उसके पोस्टीरियर एंड को देख रहे हैं तो पोस्टीरियर एंड में आपके ध्यान में आएगा कि पोस्टीरियर एंड में तो कंटिन्यूअस सेगमेंटेशन है, कहीं भी गैप नहीं है। वैसे एंटीरियर एंड में नहीं है, एंटीरियर यानी हेड पार्ट जो है, हेड पार्ट में थोड़ा सा पहला 14 सेगमेंट्स, 14 सेगमेंट्स यानी कैसे, लगभग 1.5-2 इंच का एरिया अगर आपने छोड़ दिया इनिशियल, तो उसके बाद आपको एक पिंकिश पैच नजर आता है, पिंक कलर का एक पैच जहां पे सेगमेंटेशन नहीं है। दैट इज योर सेगमेंट नंबर 14 to 16 एंड दैट पैच, दैट एम्प्टी एरिया विदाउट सेगमेंट्स इज कॉल्ड एज क्लाइटेलम। क्या कहते हैं? क्लाइटेलम। और अर्थवर्म में क्योंकि क्लाइटेलम है इसलिए अर्थवर्म कम्स अंडर द क्लास ऑफ क्लाइटेलेटा। समझ रहे हैं क्या आप? ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, हमारे पास रहना चाहिए। लेकिन ओके, आपने थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करना चाहिए। इससे पहले क्या क्या हुआ, मराठी में एक फ्रेज यूज करते, पुढचं पाठ मागचं सपाट। ओके, यानी आज क्या सिखाया, यस्टरडे क्या सिखाया, ये एकदम याद है, लेकिन पिछले हफ्ते क्या सिखाया वो याद नहीं, क्योंकि आप पीछे का रिवाइज नहीं करते। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड, इफ यू आर एस्पायरिंग टू बिकम डॉक्टर, इफ यू आर एस्पायरिंग एंड प्लानिंग टू गिव द नीट एग्जामिनेशन, नीट एग्जाम में स्टैंडर्ड 11th और स्टैंडर्ड 12 दोनों चीजें पूछी जाती है। करंटली वी आर इन जून 2020। अगर आपका 11th को एडमिशन हो रहा है जून 2020 में, इसका मतलब आपका 11th खत्म होगा जून 2021 में। एंड होपफुली
आप नीट का एग्जाम देंगे मई 2022 में। ओके, तो अर्थवर्म आप पढ़ रहे हैं जून 2020 में, लेकिन उससे रिलेटेड आप एग्जाम जो देंगे वो रहेगा 2022 में। अभी आज अर्थवर्म पढ़ लिया और उसके बाद डायरेक्ट मई 2022 में अगर आप अर्थवर्म पढ़ेंगे, आपको क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा। आप स्कोर नहीं करेंगे। पेरेंट्स पहले आपको डांटेंगे, फिर हमको डांटेंगे, सर ने क्या सिखाया? कुछ नहीं सिखाया। बच्चों को पूछो, आज कुछ नहीं आ रहा उसको। हाउ कैन आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट? आई शुडंट, आई कांट, आई वोंट। मैंने जब आपको आज ये सिखा दिया है, आपका काम है। ऑफ कोर्स वी विल बी रिवाइजिंग इट। सिलेबस खत्म होने के बाद वी डू एन नंबर ऑफ रिविजन्स, वो मैटर नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, द सक्सेस of this examination lies more on your shoulders. हमारा भी कुछ काम है, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पेरेंट्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है। आप समझ रहे हैं? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। एंड प्लीज डोंट गेट इनटू दैट हैबिट एंड दैट एटीट्यूड कि अरे एग्जाम तो बहुत बाद में, ये इतने 2-3 दिन होने दो, फिर मैं एकदम सीरियसली करूंगा। ये जून महीने में मैं अभी 10 तारीख से बहुत अच्छा पढ़ाई करूंगा, ये जुलाई से मैं बहुत अच्छा पढ़ाई करूंगा, 15 अगस्त तक मैं थोड़ा टाइम पास करता हूँ, 15 अगस्त के बाद मैं बहुत अच्छा पढ़ाई करूँ। नथिंग हैपन्स। इंडिपेंडेंस डे आ जाता है, फिर अक्टूबर भी, गांधी जयंती भी आ जाती है, फिर दिवाली भी आ जाती है, फिर क्रिसमस भी आ जाता है, नया साल भी आ जाता है, हमारा कुछ भी काम नहीं होता है। Okay, don't keep on delaying, postponing, procrastinating your work. और आप चीजें डिले क्यों करते हैं मैं बताता हूं। आप, मैं, हम सब, इट्स अ कॉमन ह्यूमन नोशन। लेकिन ये डिलेइंग इसलिए होता है क्योंकि हम इनिशियली जब काम शुरू करने का सोचते, हम पहले से ही टारगेट बहुत बड़ा रखते। तो मैंने आज टारगेट रखा है कि मैं, सर ने आज इतना बताया तो मैं क्या करूंगा, आज मैं वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इन एनिमल्स अब तक जितना चैप्टर हुआ है मैं पूरा का पूरा पढ़ लूंगा। अभी आपको ध्यान में नहीं आया है अब तक, लेकिन हमने ऑलमोस्ट 10-12 पन्नों का मैटर खत्म कर दिया। आप एकदम बैठेंगे इतने सारे पन्ने पढ़ने के लिए तो डिफिकल्ट जाएगा। एंड सडनली व्हेन यू रियलाइज कि अरे बहुत सारा मैटर है, आपका एनर्जी डाउन हो जाता है। आपका वो जो एटीट्यूड था और आपका वो जो जील था, एंथुजियाज्म जो था, वो नीचे चला जाता है। फिर आप बोलते जाने तो आज थोड़ा ही करता हूं, कल बाकी का करता हूं। फिर कल की बात निकली तो फिर आप सोचते कि ठीक है अभी कल ही करना है तो आज क्यों का हाथ लगाने का उसको। हाउ थिंग्स फॉल। तो एट दिस स्टेज you have smaller targets currently. I hope you understand when you were as a baby, 8 month, 10 month, 1 साल, 1.5 साल के आप जब थे, या आपने देखा होगा आपके यंगर ब्रदर या सिस्टर जो आपसे छोटे, जिनको आपने चलते हुए जस्ट जब वो चलना सीख रहे थे, वो फेज अगर आपने आपके छोटे सिबलिंग्स का देखा होगा। छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो हम डे 1 से ये नहीं कहते कि बाबा यू शुड इमीडिएटली स्टार्ट वॉकिंग एंड रनिंग। गोल्स कैसे रहते हैं? छोटे छोटे गोल्स रहते, तभी जाके आगे सक्सेसफुल वॉकिंग एंड रनिंग शुरू होता है। पहला गोल क्या है? बैलेंसिंग ऑन इट्स ओन लेग्स। पहला गोल ये, छोटे छोटे गोल्स है। फिर एक आधा दूसरा, धीरे धीरे माँ बाप का हाथ पकड़ के ही सही, लेकिन धीरे 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 चलना सीख रहे, छोटे छोटे गोल्स रखने। समझ रहे हैं आप? ओके, यहां भी वही करना है कि ऑफ कोर्स हमने आज जो सीखा है वो तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन एवरी सेकेंड थर्ड डे हमने वो चैप्टर पीछे क्या पढ़ा था वो पूरा रिवीजन हमने एवरी सेकेंड थर्ड डे हमने करना चाहिए। समझ रहे हैं आप? जैसा हमने टिश्यू का पार्ट खत्म किया, तो हमने टिश्यू जब खत्म किया तो हमने नर्वस सिस्टम तक खत्म किया। तो एक दिन मैं क्या करता हूं, मेरे इपिथेलियल टिश्यू से नर्वस सिस्टम तक मैं पढ़ लेता हूं। उसके बाद फिर हमने कॉकरोच किया तो मैं कॉकरोच पढ़ता हूं। उसके बाद फिर जब रिवाइज करना है तो मैं टिश्यू और कॉकरोच दोनों एक साथ पढ़ता हूं। समझ रहे हैं आप? आपको ये ऐसा ही धीरे 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 करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स कुछ ट्रिक्स भी है इसमें, कुछ आसान बातें भी है इसमें जो मुझे आपको अभी नहीं बतानी है। आप और मैं जब फेस टू फेस मिलेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। इट विल बी मोर इफेक्टिव
when we sit across the table and talk about it. Okay, let's come back to earthworm. So clitellum, it has clitellum in between segment 14 and 16. और ये बात ध्यान में रखिए, न्यूली बॉर्न अर्थवर्म जो रहते हैं, छोटे अर्थवर्म बच्चे, उनमें क्लाइटेलम नहीं रहता है। अगर कल ऐसा हो सकता है कि आपको कोई तो भी अर्थवर्म मिल गया, छोटा ही है, उसमें क्लाइटेलम ही नहीं दिख रहा है, आप ऐसा दोनों चारों तरफ से देख रहे लेकिन क्लाइटेलम दिख ही नहीं रहा, आप बोलेंगे अरे सर ने तो कुछ तो भी गलत बता दिया फिर हमको, सर तो बोल रहे थे अर्थवर्म में क्लाइटेलम रहता सेगमेंट नंबर 14 और 16 के बीच में, इसमें तो नहीं दिख रहा है। फिर या तो सर ने गलत पढ़ाया है या उस अर्थवर्म ने पढ़ाई नहीं की है। That's not the case. You might very well find earthworms without clitellum, but if they are not containing clitellum, that means they are not adult yet. उनका पूरा मैच्योरिटी हुआ नहीं है अब तक। आगे फिर से हमें ये बात कहनी है जब हम इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे तब। क्लाइटेलम 14 to 16 के बीच में है। Then it goes almost till segment number 100 to 120 as we have already talked about. इसमें और एक बात ऐसी है, क्लाइटेलम के अलावा और एक अच्छी बात ऐसी है कि हम डॉर्सली देख रहे हैं अर्थवर्म को। डॉर्सली यानी मैंने आपको 2-4 बार बताया, अर्थवर्म जब मूव करता है तो जो पार्ट उसका दिखता है उसे डॉर्सल साइड कहते हैं। और आप अगर डॉर्सल व्यू देखेंगे अर्थवर्म का, आपने अगर ऐसा हाथ पे रखा और अगर वो हिल रहा है तो आपको एक बहुत मजेदार अच्छी चीज दिखेगी कि एग्जैक्टली उसके मिडल साइड में आपको एक डार्क कलर का लाइन दिखेगा। वो कैसा है, आपको डॉर्सल साइड से दिख रहा है। ओके, यानी जो साइड अर्थवर्म जब मूव करता है तो जो साइड हमारी तरफ फेसिंग रहती है उसकी, उसको डॉर्सल साइड कहते हैं। और ये एग्जैक्टली मिडल में है, इसलिए इस लोकेशन को कहते हैं मिड डॉर्सल। और ये क्या है एक्चुअली, ये है मिड डॉर्सल ब्लड वेसल है। ये इसमें रेड कलर का ब्लड है और ये रेड कलर का ब्लड जब कॉकरोच मूव करता, सॉरी नॉट कॉकरोच, जब अर्थवर्म मूव करता है तो अर्थवर्म में ये जो रेड कलर का ब्लड है और ये जो रेड कलर का ब्लड फ्लो करने वाली जो मिड डॉर्सल ब्लड वेसल है, इसमें ये ब्लड आगे पीछे जाता हुआ दिखता है। आपको देखना चाहिए आपने अभी। Okay, you should try to find some earthworm somewhere in and around your house. बारिश काफी सारी हो गई है। बारिश में earthworm ऊपर क्यों आते हैं पता है आपको? ब्रीदिंग के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ ब्रीदिंग। ओके, उनको ब्रीदिंग के लिए कैसा है, वो पहले बरोज में थे, दे डिग अप द सॉइल, दे लिव इनसाइड द सॉइल ताकि थोड़ी ठंडक रहे। अभी जब उस बरोज में जब उन होल्स में पानी भर जाता है तो ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन अंदर आ रहा था वो मिल नहीं रहा अभी। एंड दे आर नॉट एम्फीबियंस और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कि पानी के अंदर भी ब्रीथ कर ले, दे डोंट हैव एनी मैकेनिज्म टू ब्रीथ अंडर वाटर। इसलिए बारिश में हमें वो जमीन के ऊपर आ गए हैं ऐसा दिखता है। समझ रहे हैं आप? ओके, एनीवे, तो ये ब्लड वेसल के बारे में एक बात मुझे बतानी थी आपको। मूविंग अहेड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है अभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अनगिनत बार इस पे सवाल आ चुका है। हम अगर इस अर्थवर्म को लैटरली देखें, साइड से अगर हम देखें तो देखिए ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 2, सेगमेंट नंबर 3, 4 वगैरह 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 वगैरह, पूरा नहीं ड्रॉ करना है हमको। यहां पे हमारे इंटरेस्ट का बात ये है कि ये जो सेगमेंट नंबर 1 है इन अर्थवर्म, सेगमेंट नंबर 1 इज कॉल्ड एज पेरिस्टोमियम। Segment number 1 in earthworm is called as peristomium. Segment number 1 in earthworm is called as peristomium. ये नाम बार बार लेते रहिए, पेरिस्टोमियम, पेरिस्टोमियम। सेगमेंट नंबर 1 इज पेरिस्टोमियम, सेगमेंट नंबर 1 इज पेरिस्टोमियम। ये फर्स्ट सेगमेंट है अर्थवर्म का, यानी आपका ये पार्ट हो गया, देखिए एकदम टिप, फर्स्ट सेगमेंट। और आप बोलेंगे सर एक तो वर्ड है, इतनी बार क्यों?
प्रोनाउंस करने का, उसको इतना क्या डिफिकल्ट है उसमें, याद रह जाएगा, ऑफ कोर्स याद रहेगा आपको, मुझे भी पता है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन वाला पार्ट है। कंफ्यूजन वाला पार्ट ऐसा है कि फर्स्ट सेगमेंट जो है, उस फर्स्ट सेगमेंट को आगे जाकर एक एक्सटेंशन है इस प्रकार का, और उस एक्सटेंशन को कहते हैं, लेट मी ड्रॉ इट अगेन प्रॉपरली, ये ओपनिंग जो है ये हो गया उसका माउथ, फर्स्ट सेगमेंट जो है ये हो गया पेरिस्टोमियम, और इस पेरिस्टोमियम को ये जो एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन को कहते हैं प्रोस्टोमियम। क्या कहते हैं? प्रोस्टोमियम। अभी आपको समझ में आएगा कि गड़बड़ कहां पे होने वाली है। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा द फर्स्ट सेगमेंट इन अर्थवर्म इज कॉल्ड एज डैश। सवाल क्या आएगा? द माउथ ऑफ द अर्थवर्म इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट सेगमेंट, दैट फर्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड एज डैश। सवाल क्या आएगा? द फर्स्ट सेगमेंट कंटेन्स एन एक्सटेंशन। इसको कभी कभी लोब कहते हैं। मैं आपको बार बार एक्सटेंशन बताता हूं, कभी कभी इसको, ये लोब है। द लोब अटैच टू द फर्स्ट सेगमेंट इन द अर्थवर्म, दैट लोब इज कॉल्ड एज डैश। अभी ये कंफ्यूजन वाला पार्ट है। देखिए, बच्चे लर्न करते टाइम तो करते हैं बराबर, फर्स्ट सेगमेंट इज पेरिस्टोमियम, पेरिस्टोमियम के आगे जो है फर्स्ट सेगमेंट पेरिस्टोमियम है, और पेरिस्टोमियम के आगे ये जो एक्सटेंशन है उसको प्रोस्टो, प्रो यानी पहले, प्रपोज, प्रोग्राम, प्रोक्रास्टिनेट, प्रो यानी पहले, प्रो यानी आगे, प्रो यानी एडवांस। समझ रहे आप? ओके, तो पहला सेगमेंट है पेरिस्टोमियम, और उस सेगमेंट को जो लोब अटैच है वो है प्रोस्टोमियम। प्लीज कीप दैट इन माइंड। अभी प्रोस्टोमियम का काम क्या है? हमने अभी थोड़ी देर पहले बात ये किया कि अर्थवर्म्स लिव इन सॉइल में होल बनाकर अर्थवर्म्स रहते हैं। आपको पता है ये ऑलरेडी, मैंने कुछ नई बात नहीं बताई आपको। लेकिन आपको यह भी पता है, आप में से जिन लोगों ने एक्चुअली अर्थवर्म देखा है, और तुम कैसे हाथ देखे क्या आपने? उसको ऐसे हाथ है और वो हाथ से ऐसा सॉइल निकाल रहा है और ये होल बना रहा है, बोरोज बना रहा है, और फिर उस सॉइल के अंदर जा रहा है। ऐसा देखा है क्या आपने कभी? इट्स नॉट हैविंग एनी हैंड्स, इट्स नॉट हैविंग एनी लेग्स, इट इज नॉट हैविंग एनी लिम्स। तो फिर ये डिगिंग का काम कैसे होगा? उस डिगिंग के लिए इट इज हैविंग, ये जो एक्सटेंशन है, ये जो लोब है, पेरिस्टोमियम पहला सेगमेंट है, और पेरिस्टोमियम के आगे, पेरिस्टोमियम के पहले, पहले यानी प्रो, पेरिस्टोमियम सेगमेंट से आगे की तरफ आने वाले, ये जैसे क्या हेलमेट पहन लिया है उसने, ओके, तो हेड पार्ट जो है वो पेरिस्टोमियम, और उसके आगे जो हेलमेट जैसा पार्ट पहना हुआ है, मुकुट जैसा पार्ट। अभी देखिए दूरदर्शन पे वो दिखा रहे थे, उन्होंने महाभारत दिखाया, रामायण दिखाया, वो कैसे अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर जो थे उन्होंने मुकुट पहना हुआ था। हेड इधर है पेरिस्टोमियम, और उसमें जो मुकुट है वो प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम की खासियत क्या है? प्रोस्टोमियम वैसे तो सॉफ्ट लोब है, ओके, इट इज वेरी सॉफ्ट, लेकिन जब डिगिंग की बात आती है, अर्थवर्म के बॉडी में एक फ्लूइड है जिसको कहते हैं, यहां हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, वैसे तो लोब, ये जो एक्सटेंशन है, ये जो लोब है जिसको हम प्रोस्टोमियम कहते हैं, वो वैसे तो सॉफ्ट है, लेकिन द लोब बिकम्स हार्ड
ड्यू टू अर्थवर्म के बॉडी में ये एक फ्लूइड है जिसे सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं। अर्थवर्म को जब डिगिंग करना है वो क्या करता है, अपना सीलोमिक फ्लूइड काफी सारा इस लोब की तरफ लेके आता है। तो लोब में जैसा ही फ्लूइड आ जाता है उसमें एक प्रकार का टर्गिडिटी, एक प्रकार का हार्डनेस आ जाता है उस लोब में, और फिर वो हार्ड लोब की मदद से, जिसको आप प्रोस्टोमियम कहते हैं, वो उस प्रोस्टोमियम की मदद से धीरे 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 सॉइल को डिग करना शुरू करता है। ये सवाल पूछा गया है, ये पार्ट टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है लेकिन सवाल पूछते हैं। समझ रहे हैं आप? ओके, तो ये एक पार्ट हो गया आपके अर्थवर्म का। अभी इसी अर्थवर्म को अगर हम वेंट्रल व्यू से देखें, वेंट्रल व्यू इंपॉर्टेंट है। वेंट्रल व्यू का मतलब क्या है? वेंट्रल व्यू का मतलब ऐसा है, वेंट्रल व्यू का मतलब ऐसा है कि वेंट्रल व्यू यानी अर्थवर्म जब मूव हो रहा है तो जो पार्ट हमें दिखता है वो डॉर्सल है। डॉर्सल व्यू तो हमने देख लिया। नीचे का पार्ट जो जमीन को पकड़ के चल रहा है उसे वेंट्रल पार्ट कहते हैं। और वेंट्रल पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं आपको पहले सेगमेंट्स ड्रॉ करके देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वगैरह 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 टिल द एंड 100 120 वॉट एवर इट इज। मैं बाकी का ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब बाकी का सेगमेंटेशन नहीं है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन हमारे काम की चीजें ये ऊपर है एक्चुअली। वेंट्रल साइड से आप अगर नीचे के साइड से अगर अर्थवर्म को देखेंगे तो वेंट्रल साइड में अभी देखिए ये क्लाइटेलम एरिया है 14 to 16, क्या ये क्लाइटेलम एरिया है। ओके, वहां पे सेगमेंटेशन दिखता नहीं है, फ्लैट पैच है, वो पिंक कलर का पैच है वो। और उस पैच की खासियत ऐसी है कि उस पैच में आपको एक सिंगल ओपनिंग मिलेगा। किसी ने अगर पूछा कि ये ओपनिंग क्या है, तो एक तो ये सिंगल ओपनिंग है एंड इट इज बेसिकली द फीमेल जेनाइटल पोर। क्या है वो? फीमेल जेनाइटल पोर। सिंगल ओपनिंग है ये, मैं पोर थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, एंड इट इज इन सेगमेंट नंबर 14। सेगमेंट के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल वैसे ही पूछे जाने वाले। सिंगल ओपनिंग है और सेगमेंट नंबर 14 में है, ये फीमेल जेनाइटल पोर है। वहां से आप अभी 14 और 16 तक हो गया, यहां 17 और यहां 18। आप अगर 18th सेगमेंट में आएंगे, 18th सेगमेंट में आपको दो ओपनिंग्स दिखेंगे। 18th में आपको दो ओपनिंग्स दिखेंगे। ये दो ओपनिंग्स जो है दैट इज द मेल जेनाइटल ओपनिंग्स और मेल जेनाइटल पोर्स। मैंने एस लगाया है क्योंकि दो है वो। सेगमेंट नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेगमेंट नंबर 18। तो हमारे पास क्या है देखिए, अभी सेगमेंट नंबर 14 में सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर है। नीचे से अगर अर्थवर्म का नीचे का पार्ट देखेंगे हम, जो जमीन को पकड़ के चलता है, उस पार्ट में अगर हम देखेंगे तो सेगमेंट नंबर 14 15 16 ये क्लाइटेलम पार्ट जो है वहां पे आपको एक सिंगल ओपनिंग दिखेगा विच इज द फीमेल जेनाइटल पोर। और सेगमेंट नंबर 18 में अगर आप देखेंगे तो आपको दो ओपनिंग्स दिखेंगे। दोस टू आर द मेल जेनाइटल पोर्स ऑकरिंग इन सेगमेंट नंबर 18। 18
समझ रहे हैं आप? ओके हम बेसिकली कौन से एनिमल की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट फेरेटिमा पोस्ट्यूमा। कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ओके आपने कैसा है पिछले 2-3 लेक्चर्स में कॉकरोच लर्न किया है, पेरीप्लानेटा अमेरिकाना, पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। तो बच्चे क्या करते हैं, अर्थवर्म को भी वैसा ही कंटिन्यू करते हैं, पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। दिस इज नॉट पेरीप्लानेटा अमेरिकाना, दिस इज फेरेटिमा पोस्ट्यूमा, फेरेटिमा पोस्ट्यूमा। हम उसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। समझ गए आप? ओके मूविंग अहेड। ये इन जनरल उसका बॉडी टाइप हो गया। 100 to 120 सेगमेंट से उसके बॉडी में, अर्थवर्म के बॉडी में। पहला सेगमेंट जो है उसको पेरिस्टोमियम कहते हैं। पहले सेगमेंट को आगे जो एक सॉफ्ट लोब है उसको प्रोस्टोमियम कहते हैं। प्रोस्टोमियम इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि प्रोस्टोमियम से डिगिंग का काम कर सकते हैं सॉइल के अंदर। लगभग 100 to 120 सेगमेंट्स रहती है एडल्ट अर्थवर्म में। एडल्ट अर्थवर्म मेटामेरिक टाइप ऑफ सेगमेंटेशन है इसमें, एंड सेगमेंटेशन तो कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट इन बिटवीन 14 to 16। वहां पे एक पैच है, अनसेगमेंटेड पैच है जो सिर्फ एडल्ट अर्थवर्म्स में ही दिखता है। उस पैच को कहते हैं हम क्लाइटेलम। क्या कहते हैं? क्लाइटेलम। आगे जाके मैं इसका काम बताऊंगा आपको। वेंट्रली अगर नीचे की तरफ से अगर हम अर्थवर्म को देखेंगे तो क्लाइटेलर एरिया में अभी कभी कभी कैसा होता है, क्लाइटेलम की वजह से अर्थवर्म के बॉडी को आप डिवाइड कर सकते हैं इनटू सेगमेंट नंबर 1 से सेगमेंट नंबर 13 प्री क्लाइटेलर रीजन, सेगमेंट नंबर 14 से 16 क्लाइटेलर रीजन, और 17 से लास्ट तक दैट विल बी पोस्ट क्लाइटेलर रीजन। ऐसा भी एक सवाल आ सकता है, ये भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। 14 to 16 इज क्लाइटेलम, तो 14 से पहले जितना पार्ट आएगा वो प्री क्लाइटेलर रीजन, और 16 के बाद जितना पार्ट आएगा वो पोस्ट क्लाइटेलर रीजन। क्लाइटेलम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि क्लाइटेलम में एक सिंगल ओपनिंग दिखती है हमको इन एंड अराउंड सेगमेंट नंबर 14। उस सिंगल ओपनिंग को हम कहते हैं फीमेल जेनाइटल ओपनिंग, फीमेल जेनाइटल पोर। और सेगमेंट नंबर 18 में 2 ओपनिंग्स दिखते हैं हमको, दे आर कॉल्ड एज द मेल जेनाइटल पोर, सेगमेंट नंबर 18। मूविंग अहेड, और एक छोटा सा सिस्टम देखेंगे फिर रुक जाएंगे आज के लिए। लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द digestive system of earthworm. Okay, the digestive system of earthworm, earthworm क्या खाता है हमें पता है, earthworm eats soil as well as decaying leaves, soil and decaying leaves। तो अभी अर्थवर्म व्हेन इट इज फीडिंग ऑन दिस, हमें एक पता रहना चाहिए अर्थवर्म के पास खुद का ऐसा एंडोस्केलेटन नहीं है, उसके अंदर बोन्स है, इतने बोन्स है वगैरह, ऐसा कुछ स्टेटमेंट मैंने अब तक यूज नहीं किया, हम कहीं पढ़ने भी नहीं वाले वैसा। इट इज नॉट हैविंग एनी बोन्स इनसाइड और इट इज नॉट हैविंग एनी हार्ड ऑर्गन आउटसाइड, सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म है एकदम। अर्थवर्म के बॉडी में उसका जो ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उसकी शुरुआत नेचुरली होती है उसके माउथ से। फर्स्ट सेगमेंट को क्या कहा था हमने? पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम के वहां पे उसके माउथ की शुरुआत होती है। ओके, और ये माउथ आगे जाकर थोड़ा सा एक ब्यूकल कैविटी के बाद ये माउथ का ट्यूब जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज द, देखिए आपको अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम याद होगा तो ये नाम हमारे ध्यान में रहते हैं। माउथ आ गया, फेरिंग्स आ गया, फेरिंग्स के बाद ये ट्यूब थोड़ा सा छोटा हो जाता है और लॉन्ग हो जाता है, एलोंगेटेड हो जाता है, what you called as, आपके पास भी है ये, क्या ये ईसोफेगस,
कुछ बच्चे इसको ओसोफेगस कहते हैं, ओसोफेगस नहीं कहना इसको, उसका ओ जो है वो साइलेंट है। काफी सारे बुक्स में तो ओ यूज भी नहीं करते, डायरेक्ट ई एस ओ ऐसा लिखते, वो भी स्पेलिंग चल जाता है। ओके, तो फेरेंक्स के बाद आता है आपका ईसोफेगस, और ईसोफेगस के बाद अभी ये देखिए आपके पहचान का ऑर्गन एक आ रहा है। आई होप यू आर एबल टू रिकलेक्ट दिस नेम। कॉकरोच के पास भी था ये, आपको याद आ रहा है कि ये क्या है? क्या ये गिजार्ड? गिजार्ड ऑकर्स समवेयर अराउंड सेगमेंट नंबर, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है तो लगभग 2 सेगमेंट्स में ये है गिजार्ड। जो काम गिजार्ड का कॉकरोच में था वही काम उसका अर्थवर्म में भी। देखिए आप कॉकरोच देखिए या अर्थवर्म देखिए, दोनों को माउथ के अंदर टीथ नहीं है, उनको दांत नहीं है उनको। सॉरी, नेचुरली जो फूड अंदर जा रहा है वो ऐसा चबाकर अंदर नहीं जा रहा, वो सिर्फ एनगल्फ हो रहा है। लेकिन फूड को तो एकदम बारीकी से ग्राइंड करना जरूरी है, कॉकरोच में भी और अर्थवर्म में भी। कॉकरोच में भी आपने गिजार्ड देखा था, मैंने वहीं पे आपको बताया था, बड़ा हार्ड मटेरियल रहता है वो, और उसका काम ही है, वो इस प्रकार की अरेंजमेंट रहती है, और वो क्या करता है, फूड को आगे स्टमक की तरफ भेजता है। लेकिन जैसे वो आगे स्टमक की तरफ भेजता है, वाइल द फूड इज गोइंग थ्रू दिस, ये उसको एकदम बारीकी से ग्राइंड करता है। ग्राइंडिंग का काम है गिजार्ड का। तो वो जो सॉइल मटेरियल एनगल्फ किया है अर्थवर्म ने, वो जो डीकेइंग लीव्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो एनगल्फ किए, इसलिए मैंने सिर्फ लीव्स नहीं लिखा, हरे भरे पत्ते खा रहा है ऐसा हमने नहीं लिखा, डीकेइंग लीव्स खा रहे। डीकेइंग यानी कैसे, जिनका डिग्रेडेशन हो रहा है, वो डीके हो रहे हैं यानी वो ऑलरेडी मॉइस्ट है और सॉफ्ट हो गए हैं, वो शायद ऑलरेडी छोटे 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 फ्रैगमेंट्स में टूट चुके हैं। तो इसे अर्थवर्म को ऐसा, वो हरा पत्ता उसको दिखा, ग्रीन लीफ दिखा, उसको ऐसा पकड़ा, उसको ऐसा तोड़ा, फिर ऐसा चबाया, फिर एनगल्फ किया। ये काम अर्थवर्म करने नहीं वाला, क्योंकि वो काम करने के लिए उसके पास अपैरेटस मशीनरी नहीं है। वो क्या करेगा, वो सिर्फ पिक करेगा, छोटी छोटी चीजों को क्या करेगा, पिक करेगा, एनगल्फ करेगा, उनको निगल लेगा। निगलते निगलते जब ये चीजें, ये फूड मटेरियल जब गिजार्ड के पास आएगा, गिजार्ड ये उसकी चक्की है, ये उसका ग्राइंडिंग मशीन है। गिजार्ड से आगे हम सेगमेंट नंबर 8 और 9 की तरफ आ गए हैं। 9 से आगे, अभी गिजार्ड से आगे आएगा आपका ये इतना पार्ट जो है, ये है अर्थवर्म का स्टमक। दिस इज फ्रॉम सेगमेंट 9 टू लगभग सेगमेंट 14, सेगमेंट 9 से सेगमेंट 14। यू आर गेटिंग दिस? ओके, मूविंग अहेड नाउ, फ्रॉम हियर थिंग्स चेंज। ऑफ कोर्स स्टमक के बारे में मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये बतानी है, सेगमेंट्स प्लीज ध्यान में रखिए। स्टमक ऑकर्स इन बिटवीन सेगमेंट नंबर 9 एंड 14 इंटरनली। स्टमक में अर्थवर्म के स्टमक में कैल्सीफेरस ग्लैंड्स प्रेजेंट है। नाम ध्यान में रखिए प्लीज, कैल्सीफेरस ग्लैंड्स, कैल्सीफेरस ग्लैंड्स। स्टमक ऑफ अर्थवर्म कंटेन्स कैल्सीफेरस ग्लैंड्स। इसका काम क्या है, देखिए, द जो फूड अर्थवर्म ने खाया है, एनगल्फ किया है, गिजार्ड ने उसको अच्छी तरह से बारीक करके, उसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके अभी स्टमक की तरफ भेजा है। ये ग्राइंड किया हुआ फूड जो है, इसमें अभी डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह जाएंगे, लेकिन ये ग्राइंड किया हुआ फूड जब स्टमक में आता है, उस फूड में उसका पीएच जो है वो बड़ा ही एसिडिक पीएच हो जाता है।
ये जो ग्राइंडेड फूड है इसको ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस। और ये स्टमक में जो ह्यूमस आया है, यानी ये जो ग्राइंडेड फूड आया है, ये बेसिकली इट इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट कंटेन्स ह्यूमिक एसिड। उसको ह्यूमस कहते हैं, इसलिए उसके एसिड को जो नाम दिया गया है वो ह्यूमिक एसिड है। अभी वो एसिडिटी अच्छा नहीं है उस स्टमक के लिए, इसलिए उस फूड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्सिफेरस ग्लैंड्स यहां पे प्रेजेंट है। वो कैल्सिफेरस ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन, अपने केमिकल जब इस ह्यूमस में ऐड करेंगे, अपने आप उस ह्यूमस का जो एसिडिटी था वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कैल्सिफेरस ग्लैंड्स का काम क्या है? टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द ह्यूमस। ह्यूमस यानी मैं फिर से बता रहा हूं, आप बोलेंगे सर ये ह्यूमस क्या नया चीज आ गया? ह्यूमस मींस द सेम फूड दैट इज गोइंग अहेड फॉर डाइजेशन। हम कहां तक आए हैं? हम स्टमक तक आए हैं। हम कहां तक आए हैं? सेगमेंट नंबर 14 तक आए हैं हम। सेगमेंट नंबर 14 से आगे अभी till the end you have the intestine. सेगमेंट नंबर 14 टू द एंड, एंड यानी लास्ट सेगमेंट। ओके, मैं यहां पे दिखा नहीं रहा हूं वो, लेकिन आपने अज्यूम करना है कि ये आगे जाके कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है। यहां पे अभी ये सेगमेंट नंबर 14 अगर है, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26 is important. Why 26 is important? Because दो रीजन है इसमें। पहली बात तो ऐसी है कि सेगमेंट नंबर 26 के वहां, अभी देखिए ये अंदरूनी है, डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर की तरफ है, तो आपको अर्थवर्म आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ये सिस्टम नहीं दिखने वाला, ऊपर से देखेंगे तो आपको ये एक्सटेंशन भी नहीं दिखने वाला जो डाइजेस्टिव सिस्टम को अटैच है इन एंड अराउंड सेगमेंट नंबर 16 के आसपास इस प्रकार का एक एक्सटेंशन है। सेगमेंट नंबर को ध्यान में रखिए प्लीज। ये जो एक्सटेंशन है इसको कहते हैं इंटेस्टाइनल सीकम। क्या कहते हैं? मैं फिर से यहां पे इसका नाम लिखता हूं, इंटेस्टाइनल सीकम। दो बातें पता रहनी चाहिए हमें इसके बारे में। पहली बात, इंटेस्टाइनल सीकम ऑकर्स अराउंड सेगमेंट नंबर 26, एंड इसका मतलब अर्थवर्म की बॉडी आप बाहर से देखेंगे और वहां पे आपको ये ऐसा एक्सटेंशन दिखेगा, ऐसी बात नहीं है। वो ये अंदर की तरफ है, डाइजेस्टिव अंदर की तरफ है, डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर की तरफ है, और वो इंटेस्टाइनल सीकम जो है वो भी अंदर की तरफ है। प्लीज ध्यान में रखिए। तो पहली बात हमको पता रहनी चाहिए कि इंटेस्टाइनल सीकम इज समवेयर अराउंड सेगमेंट नंबर 26। It is part of the digestive system. Number two, that it is जैसा आपके बॉडी में लीवर है और लीवर डाइजेशन को हेल्प करता है, लीवर के सिक्रीशंस डाइजेशन को हेल्प करते हैं, वैसा जस्ट लाइक योर लीवर, अर्थवर्म इज हैविंग इंटेस्टाइनल सीकम जो कुछ ऐसे मटेरियल सिक्रेट करता है जो अर्थवर्म को डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। समझ रहे हैं आप? यू आर गेटिंग दिस? ओके, मूविंग अहेड। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिए अभी। फ्रॉम सेगमेंट 26 स्टेटमेंट आपको समझ में आएगा ऐसा लिखना है मुझे। फ्रॉम सेगमेंट 26 ऑनवर्ड्स
except last 25 segments. The intestine shows inner foldings called पुराने टेक्स्ट बुक में ये लोकेशन गलत दिया हुआ है उन्होंने, तो आगे जाके आपके पास अभी टेक्स्ट बुक होगा तो आपने ये चेक करना चाहिए, नहीं होगा तो आगे जाके जब आप टेक्स्ट बुक खरीद कर लेकर आएंगे तभी जाकर आपने इसमें ये चेक करना चाहिए। लोकेशन क्या है देखिए, टाइफ्लोसोल क्या है ये बाद में बताता हूं, पहले वो कहां है ये समझना है हमको। पहले ही मैंने बताया कि स्टमक खत्म होता है सेगमेंट नंबर 14 पे, 14 से आगे अभी ये इसका बॉडी शायद 100 to 120 सेगमेंट्स का बना हुआ है, तो लेट्स फॉर आवर सेक फॉर इजी कैलकुलेशन हम कहेंगे कि टोटल 100 सेगमेंट्स है इसमें। टोटल कितने 100 सेगमेंट्स है लेट्स अज्यूम। तो हम कह रहे हैं कि टाइफ्लोसोल की शुरुआत होती है सेगमेंट नंबर 26 से, तो लेट्स कंसीडर कि दिस इज 26। तो यहां से जो उसका इंटेस्टाइन जा रहा है, सेगमेंट नंबर 26 से टाइफ्लोसोल की शुरुआत हो रही है, 26 ऑनवर्ड्स एक्सेप्ट लास्ट 25 सेगमेंट्स। यानी अभी अगर ये 100 सेगमेंट है टोटल, आखिर के 25 अगर आप छोड़ दिए, यानी आप कहां तक आ रहे हैं, सेगमेंट नंबर 75 तक। तो सेगमेंट नंबर 26 से सेगमेंट नंबर 75 तक इंटेस्टाइन शोज इनर फोल्डिंग्स कॉल्ड एज टाइफ्लोसोल। ये क्या है देखिए, अगर ये इंटेस्टाइन का ट्यूब है तो सेगमेंट नंबर 26 के आगे लास्ट के 25 अगर छोड़ दिए तो वहां तक इसको ये इस प्रकार के बहुत सारे छोटे 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 इंटेस्टाइनल फोल्डिंग्स है इसके पास। ये देखिए उसका इंटरनली कैसे फोल्डिंग्स डेवलप हो गए। आप 26 से पहले अगर इंटेस्टाइन देखेंगे तो वो ट्यूब प्लेन है, लास्ट के 25 सेगमेंट्स में का अगर इंटेस्टाइन का पार्ट देखेंगे वो भी ट्यूब प्लेन है, लेकिन बीच में लगभग ये 50 ऑलमोस्ट, ये कितने हो गए, ऑलमोस्ट 50 to 60 सेगमेंट्स तक का जो एरिया है इंटेस्टाइन का इंटरनली, उसे अंदर से फोल्डिंग्स दिख रहे हैं। इन फोल्डिंग्स को कहते हैं टाइफ्लोसोल। वो नाम ध्यान में रखिए, उसका लोकेशन ध्यान में रखिए, पर कंफ्यूज नहीं होना है। आप कहेंगे सर ये क्या है, ये किस लिए? अरे बाबा ये बहुत इजी है। आपने जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी किया था, स्टैंडर्ड 9 10th में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जब स्टडी किया था, तो हमें बताया गया था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन, मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं, स्मॉल इंटेस्टाइन शोज माइक्रोविलाई, ऐसा बताया था हमको उन्होंने। क्यों? क्योंकि माइक्रोविलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और माइक्रोविलाई की वजह से सरफेस एरिया जब बढ़ता है तो यहां पे जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ज्यादा सरफेस मिल जाता है कि वो जल्दी से बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाए। सरफेस एरिया बढ़ गया तो एब्सॉर्प्शन फास्ट हो जाएगा, इजी हो जाएगा। सेम थिंग हियर, इंटेस्टाइन अंदर से सेगमेंट नंबर 26 से आगे काफी सारे सेगमेंट्स तक ये इनर फोल्डिंग्स दिखा रहा है, यानी क्या दिखा रहा है, टाइफ्लोसोल दिखा रहा है। और ये टाइफ्लोसोल क्या करते हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ द फूड। फिर आप बोलेंगे सर लास्ट 25 सेगमेंट्स में क्यों नहीं है? उसके पीछे रीजन ये है कि जितना फूड डाइजेस्ट हो गया है वो सब क्या हो गया है, इतने रीजन में, इतने रीजन से इंटेस्टाइन के टाइफ्लोसोल की मदद से वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया। लास्ट 25 सेगमेंट में जो अभी मटेरियल जाएगा आगे,
वो एक्चुअली अनडाइजेस्टेड मटेरियल रहेगा। और वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल सेगमेंट नंबर लास्ट 25 सेगमेंट के को क्रॉस करके वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल अल्टीमेटली इट विल बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी बाय द अर्थवर्म। और वो अनडाइजेस्टेड मैटर जो रहता है अर्थवर्म का, उसे कभी कभी पेलेट्स कहते हैं। छोटे छोटे ऐसे सॉइल के पार्टिकल्स रहते हो। ये क्या है? ये पेलेट्स, अर्थवर्म के पेलेट्स है। ये अर्थवर्म का फीकल मैटर है, ये अर्थवर्म का एक्सक्रीटल मैटर है। ये किस चीज का बना हुआ है? अभी नेचुरली जो चीजें उसने खाई है उसमें का जितना अनडाइजेस्टेड पार्ट रह गया वो ये है, यानी इसमें सॉइल है, अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ सॉइल है। रेती का वो पार्ट, मिट्टी का वो पार्ट जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, लीव्स का वो पार्ट जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, ये सब एक साथ आ गया अलोंग विथ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो अर्थवर्म ने खुद बनाए थे और जो इसमें मिक्स हो गए थे। ये बहुत ही रिच मटेरियल है, ध्यान में रखिए। अर्थवर्म इज कॉल्ड एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। क्यों ऐसा? वो फ्रेंड इसलिए है कि उसका ये जो वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल में ये जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है मिक्स्ड विथ अर्थवर्म्स ओन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये एक्चुअली बड़ा ही न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल है। आपके खेत में, आपके घर के आसपास, आपके गार्डन में जितने ज्यादा अर्थवर्म रहेंगे उतना ज्यादा उनका एक्सक्रीटल मैटर रहेगा। जितना ज्यादा एक्सक्रीटल मैटर वहां पे रहेगा, ध्यान में रखिए, वो एक्सक्रीटल मैटर अर्थवर्म के लिए तो वेस्ट है, हमारे लिए लेकिन वो सोना है। इट्स गोल्ड फॉर आवर सॉइल। क्योंकि अर्थवर्म का एक्सक्रीटल मटेरियल ये हमारे सॉइल का मिनरल नरिशमेंट करता है, न्यूट्रिशनल एनरिचमेंट करता है। समझ गए आप? ओके, सो दिस इज इन जनरल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। आपने टाइम निकालकर ये पूरा डायग्राम निकालना चाहिए, ये थोड़े से रनिंग नोट्स आपके पास रहने चाहिए। ओके, रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ये क्या है? ये वेस्ट मटेरियल है। टाइफ्लोसोल क्या करता है? टाइफ्लोसोल इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड। समझ गए आप? ओके, तो आज हमने अर्थवर्म शुरू किया, फेरेटिमा पोस्ट्यूमा, और आज हमने उसका बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी एनाटॉमी एज वेल एज डाइजेस्टिव सिस्टम, ये दो पार्ट देखे। ओके, आज के लिए काफी सारा इंफॉर्मेशन हो गया। ये इसको बार बार रीड कीजिए, सेगमेंट्स की तरफ ध्यान दीजिए प्लीज। किस सेगमेंट में क्या है? जैसा गिजार्ड्स 8 and 9, स्टमक 9 to 14, टाइफ्लोसोल 26 to अहेड, 26 में फिर से इंटेस्टाइनल सिकी भी है विच आर इक्विवेलेंट टू द ह्यूमन लीवर, वो अपने कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है। ये सभी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेगमेंट के नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थवर्म। ओके, नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी सम अदर सिस्टम्स present in the body of earthworm. Okay, I hope you are finding this informative and interesting. See you soon. Thank you very much.